In this video, we are going to discuss the solvency ratios. Solvency ratios are used to assess the long-term financial position of the business. Four types of solvency ratios are there. Before doing that ratios, we should know the meaning of solvency. The solvency means the capability of a person or a group of persons or a firm to pay their long-term debt. It is the opposite, yeah, you can say that it is the antonium of the word insolvent, which you usually hear the word in Hindi, that is कंगाल. ये वर्ड हम यूजुअली उस पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कैपेबल नहीं होता अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए. तो इनसॉल्वेंट का बिल्कुल ऑपोजिट या एंटोनिम होता है सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंसी वर्ड जो है दैट कम्स फ्रॉम सॉल्वेंट. कि सॉल्वेंसी मीन्स कि अ बिजनेस हैविंग द प्रॉपर कैपेबिलिटी टू पे देयर लॉन्ग टर्म डेट. Now let's talk about the first ratio of solvency ratios. The most important one ratio of solvency is debt equity ratio. You usually heard about the internal funds and external funds. Two types of sources are there, sources of funds, that is internal funds and external funds. So that is all about the debt equity ratio. Debt equity ratio expresses the relationship between internal funds and external funds, जो basically हमें ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में कितने इंटरनल फंड्स इन्वेस्टेड हैं और कितने एक्सटर्नल फंड्स इन्वेस्टेड हैं, जो जिससे हमें एक आइडिया होता है कि फर्म एक्सटर्नल फंड्स पे कितना रिलाई कर रही है और इंटरनल फंड्स पे कितना रिलाई कर रही है. अब मैं आपको बता दूं इंटरनल फंड जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, रिजर्व्स, प्रॉफिट, ये सारा जो है वो इंटरनल फंड्स या इक्विटी में या शेयर होल्डर्स फंड में आ जाता है. अगर हम एक्सटर्नल फंड्स की बात करें तो डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सटर्नल फंड्स में या लॉन्ग टर्म डेट में आ जाती हैं. तो that's why we can say that ki debt equity ratio establishes the relationship between long term debt and shareholders fund. So that's why we have the formula of debt equity ratio is equal to long term debt divided by shareholders fund. Now you are wondering ki how can we calculate the long term debt or how can we calculate the shareholders fund. Then don't worry, we are going to discuss how can we calculate the long term debt. The formulas of long term debt is term loan plus debentures plus bonds plus public deposits plus long term provisions. टर्म लोन एज यू ऑल नो कि टर्म लोन 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आपने कोई लोन लिया है उसे टर्म लोन कहा जाता है. एंड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आर सिक्योरिटीज दैट इज ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट. एंड आफ्टर दैट पब्लिक डिपॉजिट्स आर देयर. तो टर्म लोन, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स और पब्लिक डिपॉजिट्स को मिला के लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स बनती हैं. इसमें अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ऐड कर दी जाएँ तो दैट इज आवर लॉन्ग टर्म डेट. ये तो हो गया एक फॉर्मूला. कई बार हमें जो ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि अगर वो मेंशन नहीं होती तो उस केस में फिर एक और फॉर्मूला है जो लॉन्ग टर्म डेट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. दैट इज टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज माइनस शेयर होल्डर्स फंड. देयर इज वन मोर फॉर्मूला ऑफ गेटिंग द लॉन्ग टर्म डेट, दैट इज total debt minus current liability. So these are the possible formulas of long term, of calculating the long term debt. Just you have to remember which formula we have to use as per the situation, as per the question. तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल किया जा सकता है. तो दीज आर द पॉसिबल फॉर्मूलाज विच कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द लॉन्ग टर्म डेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेयर होल्डर्स फंड. इफ वी हैव टू कैलकुलेट द शेयर होल्डर्स फंड, then first of all there is a asset approach and second is liability approach. Here in front of you, first is liability approach. If we using the liability approach, then we have to add the share capital, reserves and surplus. The formula of liability approach is shareholders fund is equal to share capital plus reserves plus surplus. Share capital here means ki the amount collected by issuing the shares, which includes the equity share capital, preference share capital, and next is reserves. Here it cover all the reserve like general reserve, workman composition reserve, investment fluctuation reserves, and then there is a surplus. Surplus means net profit that we are earning. If loss is there, then it will be deducted. If profit is there, then it will be added. That is the liability approach. Now let's talk about the asset approach to calculate the shareholders fund. If we are using the asset approach, then the formula is total assets minus current liabilities minus long term debt. And the other formula of getting the shareholders fund is fixed assets plus working capital
which is current asset minus current liabilities and minus long term debt. So in this way we can calculate the long term debt and shareholders fund. Remember one thing, अगर आपने डेट इक्विटी रेशियो अच्छे तरीके से कर ली, अगर आपने लॉन्ग टर्म डेट निकालना आपको आ गया, आपको शेयर होल्डर्स फंड निकालना अच्छे तरीके से आ गया, तो आने वाली जो 3 सॉल्वेंसी रेशियोज़ हैं उनको निकालना, उनको कैलकुलेट करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा. सो काइंडली फोकस ऑन दिस रेशियो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो. अगर हमें ये रेशियो निकालनी आ गई तो हमें अगली 3 रेशियो जो है सॉल्वेंसी की वो हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज दैट आई हैव मेंशन हियर. तो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा. The next ratio of solvency ratio, that is total assets to debt ratio. Total assets to debt ratio establishes the relationship between total assets and long-term debt, which tells us कि how many total assets are there in comparison to long-term debt. ये रेशियो में बेसिकली ये बताती है कि एक बिजनेस में टोटल लॉन्ग टर्म डेट के बदले कितने टोटल एसेट्स जो है वो अवेलेबल है. ये एक बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस को शो करती है कि एक बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस जो है कितनी बेटर है. जितनी ये रेशो ज़्यादा होगी उतना ही बेटर है, जितनी रेशो कम होगी उतना ही फर्म के लिए नुकसानदायक है. तो फॉर्मूला जो है लॉन्ग टर्म डेट निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल प्रीवियस जो रेशियो में डेट इक्विटी में आपको बता चुका हूँ. और इफ वी टॉक अबाउट द टोटल एसेट्स, देन टोटल एसेट्स कैन बी कैलकुलेटेड इफ वी आर यूजिंग द एसेट अप्रोच, देन नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स. In this way we can calculate the total assets if asset approach we are following or asset side items are given. But assume if asset side items are not given, अगर हमें asset side वाली कोई भी चीज़ नहीं दी, तो we all know that total assets is always equal to total liabilities. तो उस केस में हम total liabilities निकाल लेंगे, तो total assets के बराबर होंगी. और वो कैसे निकलेंगी? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज. तो इस तरीके से टोटल एसेट्स को निकाला जा सकता है. एंड लॉन्ग टर्म डेट के फॉर्मूले हम पीछे कर चुके हैं. सो उन दोनों को हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है. तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म debt. So in this way we can calculate the total assets to debt ratio. Our next ratio of solvency ratios are proprietary ratio. Proprietary ratio can be calculated by dividing the shareholders fund with total assets. So the formula of proprietary ratio is shareholders fund upon total assets. ये ratio हमें एक idea ये बताती है basically कि जितने भी business में total assets invested हैं या जितना भी पैसा टोटल एसेट्स में इन्वेस्टेड है उसमें से इंटरनल फंड्स जो हैं बिजनेस के वो कितने हैं. तो ये एक आल्सो सेफगार्ड देती है क्रेडिटर्स को जो हमें लोन प्रोवाइड कर रहे हैं कि बिजनेस के टोटल एसेट्स या टोटल इन्वेस्टमेंट में, या जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, उसमें बिजनेस के अपने इंटरनल फंड्स जो है वो कितने इन्वेस्टेड हैं, ये प्रोप्राइटरी रेशो द्वारा बताया जाता है. तो प्रोप्राइटरी रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बेटर है, जितनी कम होगी इट मीन्स उतना ही ये रिस्की है. सो जितने भी क्रेडिटर्स हैं या बैंक्स हैं, लैंडर्स हैं जो एक बिज़नेस को लोन देते हैं, वो प्रोप्राइटरी रेशियो को इस्तेमाल करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन जो है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एसेस करने के लिए. द लास्ट रेशियो ऑफ सॉल्वेंसी रेशियोज आर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इट इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट. दिस रेशियो टेल्स अस हाउ मच प्रॉफिट इज अवेलेबल विद द कंपनी टू कवर द फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस ऑन लॉन्ग टर्म डेट. सो ये रेशियो में ये बताती है कि कंपनी के पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है अपने इंटरेस्ट को पे ऑफ करने के लिए. एज वी ऑलरेडी नो एंड डिस्कस दैट कि एक फर्म डिपेंड करती है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स पे, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स पे हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए कितना एडिक्वेट प्रॉफिट अवेलेबल है या नहीं, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें बताती है. रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर है, उतना ही फर्म के पास एडिक्वेट प्रॉफिट अवेलेबल है. अगर रेशियो कम होगी इट मीन्स वी डोंट हैव एडिक्वेट प्रॉफिट टू कवर आवर फिक्स्ड टर्म चार्जेस या फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस. सो दैट्स वाई द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट. तो रिमेंबर वन थिंग, इन बैलेंस शीट हमें हमेशा नेट प्रॉफिट दिया होता है जो होता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बट वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल. नेट प्रॉफिट हमें लेट्स सपोज 80,000 दिया है जो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है. टैक्स रेट 20% है, इंटरेस्ट 20,000 है, तो हमें ये आफ्टर दिया है. बिफोर पता करने के लिए हमें टैक्स निकालना पड़ेगा, वो ऐड ऑन करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा ताकि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ सके. तो इस केस में हमने हमेशा क्या करना है, अगर हमें नेट प्रॉफिट दिया है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबसे पहले निकालना है. उसका तरीका है कि जो भी आपको नेट प्रॉफिट दिया है
उसे इंटू 100/100 माइनस रेट कर दीजिए। अगर जैसे यहाँ पे अगर 20% है तो 100/80 आ गया, अगर 30% होता तो 100/70, अगर 40% होता तो 100/60, अगर 10% होता तो 100/90। तो यहाँ पे मैंने 80,000 इंटू 100/80 कर दिया, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया मेरा 1 लाख। तो अब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है, तो जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख में प्लस कर दिया, वो आ गया 1,20,000। नाउ वी हैव प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जस्ट वी हैव टू पुट द values in the formula. The formula is as you know कि profit before interest and tax which is 1,20,000 and interest on long term debt that is 20,000 and our answer is 6 times, यानी कि इंटरेस्ट के मुकाबले 6 टाइम्स हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, दैट इज एडिक्वेट प्रॉफिट। इट मीन्स फर्म इज इंजॉइंग द वेरी मच गुड पोजीशन हियर। सो दैट्स वाई ये जो सॉल्वेंसी रेशियोज हैं ये एक बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताती हैं, जिससे क्रेडिट वर्दीनेस पता लगती है। जितने भी क्रेडिटर्स हैं, लैंडर्स हैं, वो सॉल्वेंसी रेशियोज को यूज़ करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।